नाम प्रकट हुआ, आपको उसकी वैल्यू शायद अभी समझ में ना आए. To each one to whom the name of the Lord has been revealed, maybe you don't understand the value of it now. मगर जब आप आखिरी सांसें ले रहे होंगे, But when you will be breathing your last, तब आपको इस उद्धार की असली में जो इसकी कीमत है वो आपको समझ आएगी. then you will understand the real worth of this salvation. सो आप धन्य हो जो यीशु का नाम आपके ऊपर प्रकट हुआ. So you are blessed that the name of Jesus has been revealed over you. इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है. This has nothing to do with any क्योंकि religion. कई ऐसे क्रिश्चियन हैं, कई ऐसे ईसाई हैं जो ईसाई परिवार में पैदा हुए और उन्हें वो नाम नहीं प्रकट हुआ, और आप जो जगह जगह अलग अलग जगह थे, अलग अलग कुल थे, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग जगह से प्रभु ने आपको बुलाया और अपना नाम आपके ऊपर प्रकट किया. Because there are many from religious Christian backgrounds, Christian families upon whom this name was not revealed, but to you all whom God chose and called and separated from different tribes and tongues and different places, and He called you in His name. कितने लोगों को याद है आखिरी संडे में हमने क्या सीखा था? How many of you remember what we learned last Sunday? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं The Lord Jesus is कि saying उसने वध होकर that Him being slain अपने लहू से by His blood हर एक जाति, from every tribe, हर एक कुल, every tongue, हर एक भाषा से from every people, लोगों को अपने लिए मोल लिया. He purchased people for Himself. Amen. So such a great privilege कितना महान सौभाग्य है that we were purchased, कि हम खरीदे गए हैं, we were bought हम मोल लिए गए हैं by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा. Amen. Amen. So यहाँ पृथ्वी पे So here on the earth, एक जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं उनकी एक लिस्ट निकलती है, फोर्ब्स. there's a list of the very wealthy people, Forbes list. मेरा किसी का 100 नंबर, किसी का 500 नंबर. Somebody's on the 100, उनकी somebody 50, पृथ्वी 100. पे जो संपत्ति है उसके हिसाब से उनकी रैंकिंग निकाली जाती है. Their earthly possession determines their ranking here. मगर अगर इस पूरे कॉस्मोस में, But if in the entire cosmos, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर असली में असली कीमत निकाली जाए तो सबसे अमीर लोग आप लोग हो और मैं हूँ. but if in the entire cosmos we took out the real net worth, then it is you and I that is the richest. Amen. Because our worth is not temporary. क्योंकि हमारी कीमत थोड़े समय की नहीं है. हमारी जो कीमत परमेश्वर ने लगाई The worth that God set on us, वो अनंत तक वैसी ही रहेगी. it will be eternal forever. और जिस दिन आप इस सच को समझ गए तो आप समझ जाओगे मैं सबसे अमीर व्यक्ति हूँ इस दुनिया में. And the day you understand, you will know that you are the richest person on the earth. वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें नाशवान सोने और चांदी से नहीं खरीदा. The word of God says God has not purchased us with gold and silver that is perishable. नाशवान सोना और चांदी. Perishable gold or आपने silver. देखा कभी ऊपर जाती है उसकी वैल्यू, कभी नीचे जाती है. You see, sometimes the price goes up, the price comes down. मगर यीशु के लहू की जो कीमत है But the worth of the blood of कभी Jesus, नीचे नहीं जाएगी. it will never go down. और आप उस लहू से खरीदे गए हो जो अविनाशी है, जो नाशवान नहीं है. And you have been purchased with that blood that is indestructible, imperishable. Amen. So अगर आप अपनी वैल्यू लगाना चाहते हो, If you want to determine your own value, don't measure your worth by the worldly standards. तो दुनिया के स्तर से अपना दाम लगाने की कोशिश मत करो. Measure your worth through the eyes of the Lord. अपनी कीमत प्रभु की नजरों से लगाओ. Amen. Amen. What a great privilege. कितना महान सौभाग्य हमारा. Amen. Amen.
सो आज हम थोड़ा वचन सीखेंगे, ठीक है? So we will learn the word today, थोड़ा सा little bit. मैं सोच रहा था आपको डीप मैं स्टडी में ले जाऊंगा, मगर आज समय नहीं है इतना, I was thinking I'll take you in deep और मैं study. कोशिश करूंगा इसको जल्दी ख़त्म कर दें, क्योंकि मेट्रो से कई लोग घर जाते हैं. We'll try and wrap up sooner because many people go home by metro. ओके, सो ध्यान धरकर वचन सुनना है. So hear the word intently. अगर आपका एटीट्यूड, अगर आपका स्वभाव वचन के लिए सही है, तो अपने आप जय आप देखोगे. If your attitude is right towards the word, you will automatically see victory in your life. क्योंकि विश्वास कैसे आता है? Because faith comes by सुनने से. Hearing. मगर कैसे सुनने से? but hearing how? कैजुअल सुनने से नहीं. Not by casually hearing. हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर कर सुन. My son, hear my word intently. कैसे सुन? How? ध्यान धर कर सुन. Intently you hear the word. जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, जैसा आपका स्वभाव उसके वचन के लिए है, वो ये दर्शाता है कितनी कीमत आप परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाते हो. The way you hear God's word determines what kind of worth you place on God's word. और ये याद रखो कि आत्मिक जहां में सब कुछ खुला है, सब कुछ नग्न है, सब कुछ नंगा है, कुछ छुपा नहीं है. And understand that in the spirit world everything is transparent, everything is naked, there is nothing hidden. मैं 10 गाने गा सकता हूँ. I love you Jesus. I can sing 10 songs, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ, मगर सब खुला है. but everything is open. आप ये नहीं कह सकते मैं यीशु से प्यार करता हूँ, मैं यीशु का आदर करता हूँ, मगर मैं उसके वचन से प्यार नहीं करता और उसके वचन का आदर नहीं करता. क्यों? क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था. और 16वीं आयत में वचन देह धरकर आया और हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की. तो अगर आप यीशु से प्रेम करते हो, अगर आप कहते हो मैं यीशु से बहुत प्रेम करता हूं, तो वो प्रेम प्रकट होगा आपका प्रेम जो उसके वचन के लिए उसमें. If you say you love Jesus, your love for Jesus is manifested in the way you love the word of God. Amen. So कैसे सुनना है वचन? So how do you hear the word? ध्यान धरकर. Intently. आप जानते हैं जो पायलट्स होते हैं, You know the pilots? मेरे कुछ दोस्त हैं जो पायलट्स हैं, I have some friends that are pilots. तो उनको वो हेडफोन्स नहीं लगा सकते बहुत तेज आवाज. They cannot wear loud headphones. हम लगा सकते हैं, वो नहीं लगा सकते. We can, but they cannot. क्योंकि जब आप लाउड हेडफोन लगाते हो तो आपकी जो हेयरिंग है, आपकी जो सुनने की क्षमता है, वो कम हो जाती है. Because when you use loud headphones, your hearing capacity reduces. और कई बारी हमें लगता है जो पायलट्स हैं वो, आप जानते हैं ये जो फ्लाइट्स हैं इंडिगो, जो आप सारी फ्लाइट देखते हैं, दिस इज नॉन विजुअल फ्लाइंग, यानी वो देखकर नहीं उड़ाते, वो सुनकर उड़ाते हैं. So all the commercial pilots, when they fly their flights, they don't see and fly, they hear and fly. जो ये पायलट्स आप देखते हो, ये जो जहाज उड़ाते हैं, ये देख आंखों से नहीं उड़ाते. The pilots don't see and fly. वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते. They can't अरे do what they ऊपर want. आसमान खाली लिख रहा है, ऊपर ले जाता हूं मैं. Oh, I can see the sky is empty, let me नहीं, take up. No. वो उस आवाज को, उस शब्द को, उस वचन को ध्यान धरकर सुनते हैं, जो एक मैसेज उन्हें भेजा जाता है, और वो उसको ओबे करते हैं. वो कहते हैं 10,000 फीट में ले जाओ, 10,000 फीट में ले जाते हैं. They hear that voice carefully that gives them the instruction, go up to 10,000 feet, they go up to 10,000 feet. जिद नहीं करते. They don't say, वो नहीं कहते 10,000 फीट क्यों ले जाऊं, they don't say why 10,000? 20,000 क्यों नहीं ले जाऊं. Why not 20,000? अगर आत्मा में उड़ना है If you want to fly in the spirit, तो परमेश्वर की आवाज सुनना और उसकी आज्ञा मानना सीखना पड़ेगा. then you'll have to learn to hear and obey the voice of God. ओके. और टाइम पे उनको इंस्ट्रक्शंस आते हैं. And time after time they receive instructions. It's not what they see with the natural eyes, it's what they hear. That is what makes them reach their destination.
वो अपनी आंखों से क्या देखते हैं उससे नहीं, लेकिन अपने कानों से जो सुनते हैं उसकी वजह से वो मंजिल तक पहुंचते हैं। जिस दिन आप इस बात को समझ गए कि आपकी जय उसमें नहीं निर्भर जो आप आंखों से देखते हो, मगर आपकी जय उसमें निर्भर है जो आप कानों से उसका वचन जो ध्यान धरकर सुनते हो, वो वचन आपकी रक्षा करेगा, वो वचन आपको हर एक बीमारी से बचाएगा, वो वचन आपको अंत तक लेकर जाएगा और आप अपनी दौड़ को पूरा करोगे। The day you understand that you do not fulfill this race by what you see with your eyes, but what you hear, the word that you hear will protect you. It will lead you till the end and you will fulfill your race. Amen. So पहला किंडरगार्टन टीचिंग, इस बात को समझो, So the first kindergarten teaching है वचन को ध्यान धरकर सुनना। is to hear the word carefully and intently. क्योंकि आपके ये जो दो कान हैं, Because your 2 ears, ये आपकी आत्मिक गर्भ का प्रवेश का द्वार है। this is your spiritual womb entry point. क्योंकि यीशु ने क्या कहा, वचन क्या है? लूका 8:11 में लिखा है कि बीज परमेश्वर का वचन है, या वचन क्या है? बीज है। So Luke 8:11, Jesus said, the word is the seed. दृष्टांत यह है कि बीज तो क्या है? परमेश्वर का वचन है। Seed is the word of God. और जब आप ध्यान धरकर वचन को सुनते हो तो वो बीज आपके हृदय में चला जाता है। And when you hear that word intently, that seed goes into your heart. That यही word goes काम into है your बस। heart. That's what you have to do. उगाना आपका काम नहीं है, To make it grow is not your role. बीज अंदर चला जाए ये आपका काम है। The seed should go in. अगर That's your अंदर role. चला गया, उगाना परमेश्वर का काम है। If the seed goes in to make it grow, God's job. बस यहीं पे कई लोग कहते हैं प्रभु तू कब करेगा? प्रभु कहता है तू बीज को मेरे अंदर नहीं जाने देता। That's where many people are stuck. They're saying, God, when will you do it? And God is saying, you don't let my seed in you. आपका काम क्या है? What is your job? वचन को प्रवेश करने देना अपने हृदय के। Let the word enter your hearts. अगर वचन प्रवेश कर गया आपके हृदय में तो बढ़ता जाएगा, अपने आप फल आएगा। If the word enters your heart, it will keep growing and the fruit will come automatically. ओके, ये वचन नहीं था, ये इंट्रोडक्शन था। This कि is आप not the- वचन ध्यान से सुने। This is not the word, this is the ठीक है। introduction, so you hear carefully. मैं बार बार आपको ये रेपिटेशन में ये बताऊंगा कि ताकि आप समझ जाएं कि हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ न जानें। I will say this again and again in repetition so that we don't despise the word of God. उसने अपने वचन में कहा, मैंने अपने वचन को भेजा और तुझे मैंने बीमारियों से चंगा किया है। In his word he has said, I have sent my word and healed you of your diseases. मैंने अपने वचन को भेजा और तुझे नाश होने से बचा लिया है। I have sent my word and saved you from destructions. आमीन। तो चलिए आज पूरी दुनिया में लोग गुड फ्राइडे मना रहे हैं। The whole world is celebrating Good Friday. कई खुश हैं, कई रो रहे हैं। Some are happy, some are crying. कई रीति रिवाज से मना रहे हैं, Some are celebrating by ritual, कई प्रकाशन से मना रहे हैं। some by revelation. आमीन। Amen. मैंने आपको कहा था जो हम रीति रिवाज से करते हैं वो धर्म है। I told you, whatever we do by rituals is religion. हम प्रकाशन से चलने वाले लोग हैं। We are the people that live, that walk by revelation. ओके, सो पहला कुरिन्थियों 1:18। 1 Corinthians 1:18. पहला कुरिन्थियों 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. परमेश्वर की सामर्थ छुपी है क्रूस के संदेश में। The power of God is hidden in the message of the cross. और अगर आप इसको नहीं समझेंगे, And if you don't understand this, वो जो सामर्थ परमेश्वर की आपके लिए कार्य करना चाहती है, वो सामर्थ कार्य नहीं कर सकती। the power of God that wants to work for you cannot work for you. मैंने आपको पहले भी बताया था, इतने सारे मसीह हैं जो पुराने नियम की कहानियों में हैं और वो ठीक है, मगर पुराने नियम की कहानी से उद्धार नहीं है।
There are so many believers that are stuck in the old covenant stories, and that is okay, but there is no salvation in those stories. Gospel, सुसमाचार, in the gospel, सुसमाचार it's the में story of the cross. क्रूस की कथा है, And that is what saves us. और उसी से हम उद्धार पाते हैं. तो बहुत जरूरी है कि हम इस रहस्य को, इस मिस्ट्री को समझें कि ये क्रूस की कथा क्या है. So it is important that we understand this mystery. What is this story of the cross? आपने सुना होगा कई लोग जो बाहर से देखते हैं वो कहते हैं अरे इनका भगवान खुद को तो बचा नहीं सका क्रूस में, इनको क्या बचाए. सुना किसी ने? मुझे हाथ दिखाओ. You would have heard people say outside, oh, their God could not save himself from the cross. What will he save them? तो क्या बोलोगे आप उन्हें? What will you tell them? तो ये बोलेंगे हम उन्हें, This is what we will क्योंकि say. क्रूस की कथा For the नाश होने वालों के लिए मूर्खता है. the message of the cross is foolishness to those that are perishing. They cannot wrap their mind around this, the message of cross. वो इस बात को अपने मन में समा ही नहीं सकते जो इस क्रूस का संदेश है. The message of cross looks like the story of defeat. क्रूस का जो संदेश है वो हार की कहानी लगता है. ऐसा लगता है कि क्या इनका परमेश्वर तो क्या कमजोर परमेश्वर है, ये देखो. It seems like, oh, look at their God, he's so weak. But it's the opposite. पर मुद्दा असल में उल्टा It's ही है. not the story of defeat, Yeah. it's the story of victory. ये हार की नहीं, ये जय की कहानी है. यही तो बात है. That's what it is. That's the mystery, that's the wisdom of God. यही रहस्य है, यही परमेश्वर की बुद्धि है इसमें. मगर जो लोग नहीं समझते, जो नाश हो रहे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे. But the people that are perishing, they will not understand this. They will mock the message of the cross. वो क्रूस के संदेश का मजाक बनाएंगे. मगर जो लोग उसको समझ गए, उस कथा में ये सामर्थ है कि उनको मृत्यु में से आजाद कर दे. उस कथा में ये सामर्थ है उनको श्रापों में से आजाद कर दे. उस कथा में ये सामर्थ है उनको हर पापों के बंधन में से छुड़ा ले. But to those who understand, this story has the power to deliver them from every bondage, to set them free from every sin, and to take them out of every curse.